Good morning. Good morning to all of you, respected principal sir, honorable resource persons, colleagues, and participants. I welcome you all in this national webinar organized by Women's Cell, Agarwal College, Vallabhgarh. As per the Indian culture, first of all, I invoke Ma Saraswati, goddess of knowledge and learning, to seek her blessings. Ya Devi Sarvbhuteshu, Buddhi Rupena Sanstita, Namastasai, 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 Namo Namah. On this digital platform, I extend a warm welcome to our principal, Sir Dr. Krishan Kant Gupta, under whose dynamic leadership the college has been progressing leaps and bounds. The college has got A++ grade by NAC with CGPA 3.57. Sir is the recipient of many prestigious awards, including Best Principal Award, Award from Honorable Governor of Haryana. To say anything about Sir is to show a mirror to the sun. He is a source of inspiration for all of us. I welcome you, sir. I also extend a warm welcome to our eminent speakers, Dr. Usha Kiran Agarwal and Advocate Neha Koshi. I heartily welcome to all the participants from different parts of the country, without whom this webinar cannot be imagined. I can also see the names of many seniors who have joined: Madam Kamal Tandon, Madam Archana Bhatia, Madam Lakshmi Gupta. I welcome you all for gracing this occasion. Now I invite Principal Sir for welcome address. Sir, please. Thank you, Dr. Geeta. Let me, at the very outset, congratulate the Women's Cell of the college for organizing such a valuable program in such tough times. I'm sure that the figure is reaching 300. All the faculty members from various universities and colleges, pan-India, who are on board for this national webinar, I'm sure they are safe along with their families at their respective places. They should remain safe, stay safe, follow the corona appropriate behavior and protocols, because sooner or later this lockdown has to be removed. And to control this dreaded disease, it is in our hands. We can only control this disease, no one else. And we as teachers, we have much more responsibility to sensitize our staff, to sensitize our students, and even to sensitize the society. And in the same way, today also you are talking about society, protection of women rights, need for an inclusive and prosperous society. मैं सोचा था इसको हिंदी में क्या कहा जाए, तो कुछ जितना मेरा ज्ञान है तो मैंने सोचा यह है समावेशी एवं समृद्ध समाज के लिए महिला अधिकारियों की रक्षा. Very relevant topic, very relevant, well thought topic. And to add on value to this national webinar, we have our esteemed speakers, Dr. Professor Usha Kiran Agarwal ji. She is a very senior teacher, I would say, because every professor or associate professor or assistant professor is a teacher first. And a teacher is a learner first. Because I always say, who stops learning, he is finished. So a teacher is always a learner. So she is from Department of Psychology, Government DB Girls College, Raipur, Chhattisgarh. She is the keynote speaker in this very valuable national webinar. We have another esteemed speaker, Miss Neha Koshi. She is in-house lawyer in Gurugram. So I must congratulate Dr. Shobna Goyal, Dr. Renu Maheshwari, Dr. Geeta Gupta, because we have 3 branches of this women's cell. Because our college is slightly big, having 5,000 students, and it operates in 2 wings. So all the cells, societies, we have 3 units. So all the in charges of 3 units are here. When you talk of this protection of women rights, मैंने एक कहावत सुनी है कि भगवान उन्हीं की रक्षा करता है जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं. God helps those who help themselves. तो ये बात हमें हमेशा अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपनी सोच में रखनी चाहिए. और एक दूसरी बात जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जो
कुछ लोग कहते हैं, और एक न्यास है शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, जिसके राष्ट्रीय सचिव माननीय अतुल कोठारी जी हैं, वो एक बात कहते हैं कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं। जब इस तरह की बातें, इस तरह के स्लोगन्स भिन्न भिन्न मंचों से, भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की बातें हम डिस्कस करते हैं, तो 70 से भी ज्यादा वर्ष हमारी स्वतंत्रता को हो गए, और अभी भी हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स की बात करते हैं। ऐसी क्या बीमारी है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि इस तरह की बातें हमें करनी पड़ती हैं? मैं समझता हूं कि जितने भी दिन मनाए जाते हैं, वुमेन्स डे मनाते हैं, बड़े रूप में मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो ये हमें लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए ये सब दिवस और ये सब बातें की जाती हैं, ताकि लोग भूलें ना। क्योंकि मानव की ये एक प्रकृति है, आम प्रकृति है कि वो भूलता बहुत जल्दी है। रामायण में भी कहीं पर एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी बहुत ही बलिष्ठ थे बाल काल में, जो जिस देवता ने सूर्य को अपने मुंह में रख लिया हो, तो उससे बलिष्ठ कौन हो सकता है। लेकिन जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने की बात आई, तो उनके अंदर उतना बल था, लेकिन वो भूल चुके थे। तो उनकी स्तुति करी गई, को नहीं जाने थे जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहारा। तो उनको ये दर्शाया गया, उनको ये बताया गया कि भी आपके अंदर इतना बल है कि आप इसको कर सकते हैं। तो जब उनको ये बता दिया गया, उनको याद आ गया तो उन्होंने वो काम कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह के जो तरंग संगोष्ठियां आजकल पूरे देश में ये चल रही हैं, क्योंकि कोरोना काल है, टच मी नॉट एनवायरमेंट है, ना आप सामने बैठ सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना बात कर सकते हैं। बात करेंगे तो बहुत मोटा एक मुच्छिका जिसको कहते हैं हिंदी में, मास्क बीच में आ जाता है, ना ढंग से बोला जाता है। तो ऐसे एनवायरमेंट में इस तरह के वेबिनार्स के माध्यम से जो समाज में एक जागृति पैदा करने का एक ये प्रयास है वुमेन सेल अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ का, उसके लिए मैं तीनों इंचार्जेस को और जो विद्यार्थी भी कुछ इसमें जुड़े हुए होंगे उनको अपना साधुवाद देता हूँ। और जो भी और सीनियर टीचर्स जैसे बता रहे थे, अर्चना भाटिया, शी इज ए वेरी गुड स्पीकर ऑन women issues and women rights. I have listened to her several times, many times. मैडम कमल टंडन हमारी सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं कॉलेज में, वो भी हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई हैं, और 300 से भी ज़्यादा हो गए हैं अब तो इसका मतलब विषय तो प्रासंगिक है, लोग इस पर सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि सुनकर के भूलें ना। लोग कहते हैं कि जस्टिस डिनाइज एट द गेट ऑफ द कोर्ट, रिसर्च स्टॉप्स एट द गेट ऑफ द लैब। तो यदि न्याय कोर्ट के जज के कमरे से बाहर निकल करके नहीं जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। यदि शोध आपका लैब से निकल करके फील्ड्स में नहीं जाएगा, समाज में नहीं जाएगा, सोसाइटी ओरिएंटेड नहीं होगा, तो उसका भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसी तरह से आज जितने भी ये साथी हमारे इसमें जुड़े हैं, जो मैडम उषा किरण अग्रवाल जी के मुखारबिंद से और नेहा कोशी जी के मुखारबिंद से जो आप सुनेंगे उसको आप अच्छे से आत्मसात करें। उषा किरण जी बहुत अच्छी स्पीकर हैं। बाय द वे हमें ऑनलाइन माध्यम से एक प्लेटफॉर्म कॉमन शेयर करने का मौका मिला था और मैडम को मुझे सुनने का मौका मिला। तो साइकोलॉजी की है, लेकिन वो जो गुण इनके अंदर है वो मैं हिंदी वाले प्रोफेसर्स में ज्यादा देखता हूँ, लेकिन मैंने उनमें भी वो देखा। तो मैंने डॉक्टर गीता गुप्ता को कहा कि भी मैडम से आप रिक्वेस्ट करें एक बार थोड़े ज़्यादा समय के लिए और ज़्यादा लोगों को, हम अपने इलाके के लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हालांकि ये वेबिनार तो पैन इंडिया है, पूरे देश से ही लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो एक बार पुनः मैं वुमेन सेल इंचार्ज को बधाई देता हूं और पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने विद्यार्थियों की तरफ से, अपनी प्रबंध समिति की तरफ से मैडम उषा किरण अग्रवाल जी का और नेहा कौशी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए डॉक्टर गीता को अधिकृत करता हूं। डॉक्टर गीता प्लीज। Thank you, sir, for your constant support and encouragement. As sir has rightly said, the topic is quite relevant in today's scenario. According to UNO Charter 1945, promoting and protecting women's rights is the responsibility of all states. Yet, millions of women around the world continue to experience discrimination, gender-based violence, and unequal access to resources. Only making law cannot improve the situation. We have to change the mentality of the masses.
To deliberate more on this, today we have with us Professor Usha Kiran Agarwal from Government DB College, Girls PG College, Raipur. She has an illustrious teaching career of 37 years, full of excellence and achievements. She is also a trainer associate for UGC Capacity Building Program for Women Managers. She has organized 105 workshops, completed 6 research projects, published 50 research papers, and is providing guidance to research scholars. She has the credit to start the Women's Study Center first time in Chhattisgarh. She is truly an embodiment of women empowerment. Without taking much time, I invite Madam Usha Kiran to deliver her talk. Ma'am, please. थैंक यू बेटे गीता। महाविद्यालय के प्राचार्य सर को मैं अपना सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ और मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं A++ कॉलेज के प्लेटफॉर्म पे कोई बातचीत कर रही हूँ। थैंक यू सर, आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर पाऊँ। शोभना जी, रेणु जी और गीता जी का सादर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया और साथ साथ जितने भी एस्टीम्ड लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं अपनी नमस्ते प्रेषित करती हूँ। और साथ साथ मेरी प्रिंसिपल मैडम भी यहाँ जुड़ी हुई हैं, उनको भी मैं अपना सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। I also welcome your principal, madam. Sorry to interrupt. I also welcome your principal, madam. Thank you, sir. Thank you. Please. I am sharing my screen. Geeta ji, is it visible on slideshow? Yes, ma'am, it is visible. आज मुझे जिस टॉपिक पे बात करनी है, मुझे ये बताया गया कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके मुझे बातचीत करनी है और वो जो टॉपिक है वो बड़ा वास्ट है। इसका इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल है। मदर एज अ टीचर एंड प्रोटेक्टर, इस विषय पर मुझे बात करनी है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम जिस विषय के होते हैं उसका थोड़ा ना थोड़ा शैडो हमारी बातचीत पर आ जाता है, तो मैं इसे बिल्कुल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इस कोट के साथ मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगी। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह से लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह से लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। मेरा जो प्रस्तुतिकरण है उसमें मैंने माँ बेटी के संबंधों की व्याख्या करने की कोशिश की है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सीखते आ रहे हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है। अगर हम थ्योरीज की बात करें तो एरिक्सन की थ्योरी, फ्राइड की थ्योरी को लेकर हम एज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके रिसर्च वर्क को देखें तो ये रिसर्च वर्क बहुत कम है। लेकिन जो भी वर्क है वो एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर आधारित है, अनुभव आधारित है, और उन्हीं अनुभवों का संकलन मैंने किया है। अपनी बातचीत को प्रस्तुत करते हुए मैंने दुर्गा सप्तशती के तंत्रोक्त देवी सूत्र, जो वास्तव में माँ के गुणों की प्रार्थना है, कि कुछ श्लोकों का समावेश किया है। वैसे तो सारे 30 श्लोकों को इंटरप्रेट किया जाए तो वो अद्भुत होगा, क्योंकि वो विशेष रूप से माँ का जो स्वरूप समक्ष रखते हैं वो अद्भुत है। मदर एक ऐसा शब्द है जो कि संपूर्ण प्रकृति को अपने साथ लेकर चलता है। अगर हम इस श्लोक को देखें, नमो दैव्ये महादैव्ये शिवाय संततः नमः, नमः प्रकृत्ये भद्राय नियता प्रणता स्मताम। We bow to goddess, to the great goddess, to energy of infinite goodness. We prostrate with hands together to nature, to the excellent one. यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जेनेसिस 2.7 ये कहता है कि ईश्वर ने जमीन से कुछ मिट्टी उठाई और मिट्टी को गूंथ कर आटे की तरह उसमें से एक मनुष्य की रचना की और उसमें प्राण वायु फूके, और इस तरीके से मनुष्य का प्रादुर्भाव हमारी पृथ्वी पर हुआ। जो
हमारा सर्वशक्तिमान भगवान है, जिस तरह हमारे में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसी तरह जो हमारा सर्वशक्तिमान भगवान है उसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीनों ने मिलकर ह्यूमन रेस को, मनुष्य प्रजाति को जन्म दिया और ईश्वर ने खुद ही माँ का रोल करने, माँ की भूमिका करने का बीड़ा उठाया। अरबिंदो जो प्रख्यात संत हैं वो कहते हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, वो ये बताते हैं कि मदर जो है ये केवल एक अपीयरेंस नहीं है, एक दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि ये अलग अलग वक्त पर अलग अलग रूपों में, अलग अलग क्षमता में, अलग अलग कार्यों में हमें दिखाई देती है। इस फिजिकल बॉडी को यदि हम छोड़ दें तो इतने प्रकार, इतने फॉर्म्स, इतने पावर्स इस परसोना में है जिसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। माता केवल एक रूप नहीं बल्कि विभिन्न समयों पर अनेक है। स्थूल शरीर के पीछे माता के अनेक रूप, शक्तियां और व्यक्तित्व हैं, ऐसा अरबिंदो जी का कहना है। अगर हम इस श्लोक को लें, अभी हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर आते हैं। अति सौम्यति रौद्राय नतास्तस्ये नमो नमः, नमो जगत प्रतिष्ठाये दैव्ये कृत्ये नमो नमः। We bow to the extremely beautiful and to the extremely fierce. We bow to the establisher of the perceivable world and who is mundane existence. We bow. सर अभी कह रहे थे, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. We bow to the divine goddess existing in all, who resides in the form of wisdom. We bow to her and we continuously bow to her. तो माँ क्या है? माँ अनेक गुणों का एम्बॉडीमेंट है। उसमें इमोशंस हैं, कार्य हैं, एक्शंस हैं और बहुत सारी चीजें मिलकर मदरहुड का जन्म देती हैं। मदरहुड जो है वो मल्टीटास्किंग है। इसमें खुशी है, दुख है, आराम है, भय है, प्रेम है, घृणा है, ये तेज है, धीमा है, इसमें हमारा भूत है, हमारा भविष्य है। ये एक स्टेज है परपेचुअल फेल्यूर का, क्योंकि कहा जाता है कि माँ तब आराम करती है जब उसका शिशु सोता है। वैसे हमें बालिका के रेफरेंस में ये बातचीत करनी है, लेकिन हम इसे एज अ चाइल्ड देखें तो ज्यादा अच्छा होगा। लिबी ये कहती हैं, जो कि गारमेंटो टर्न सस्टेनेबल फैशन एडवोकेट हैं, एजुकेटर हैं, राइटर हैं, मदर हैं, क्रिएटिव थिंकर हैं, कि जब हम माँ होते हैं तो हम हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त होते हैं। और पिछले दिनों किसी ग्रुप ने मुझे ये कहा कि माँ एक ऐसी चीज है जो खुद को ठंड लगने पर बच्चे को स्वेटर पहना देती है। तो ये माँ की जो परिभाषा है कि वो तब अपने सारे कार्य संपन्न करती है जब उसका शिशु सोता है, और बहुत सारे कार्य वो इतनी प्रीऑक्यूपाइड होती है कि बहुत सारे कार्य शिशु के उपस्थिति में नहीं कर पाती है। माँ लाइफ गिवर है, वो हमारे को केवल जीवन नहीं देती। सिगमंड फ्रायड की यदि हम बात देखें तो वो कहते हैं कि जो हमारी माँ है वो उससे हमारा पहला इंटरेक्शन होता है, पहली अंतःक्रिया होती है। और वो जो पहली अंतःक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है कि वो उसको लैब में लेकर स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ये जो स्तनपान है, ये केवल उसे भोजन नहीं देता, उसे संरक्षण भी देता है, उसे सिक्योरिटी भी देता है। और ये देखा गया है कि जो लोग, ऐसे सभी लोग जिन्हें माँ स्तनपान नहीं कराती, उनकी पर्सनालिटी में एक महत्वपूर्ण चेंज देखने को मिलता है और वो गलिबल प्रकार के हो जाते हैं, जैसे हम देखेंगे। अनेक साहित्य में हमने पढ़ा है कि माँ हमारी पहली टीचर है, वो हमारी पहली रोल मॉडल है। अल्बर्ट बांडुरा जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि बंदर के 2 बच्चों को जब अलग अलग पाला गया और ये देखा गया कि एक बंदर के बच्चे को हमने फरी ऑब्जेक्ट, जो जिसे हमने सरोगेट मदर कहा, उस सरोगेट मदर से चिपका दिया गया और दूसरे बंदर के बच्चे को नेचुरल मदर के साथ पाला गया, तो ये देखा गया कि जिसे सरोगेट मदर के साथ पाला गया वो बच्चा बड़ा होकर काफी एंग्शियस या डिप्रेशन फील करता था, उसके अंदर काफी द्वंद्व होते थे। तो ऐसी क्या बात है माँ के लैब में?
जो हमारा पहला इंटरेक्शन होता है, जो हमारी पहली अंतःक्रिया होती है, जो हम पहला सोशल बिहेवियर सीखते हैं, वो हम अपनी माँ से सीखते हैं। वो होता है कोऑपरेशन, कि अगर हम माँ का स्तनपान नहीं करेंगे तो माँ बीमार हो जाएगी, उसे बुखार आ जाएगा, और इसलिए हमने पहला सोसाइटल बिहेवियर सीखा, वो है कोऑपरेशन, इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है केवल फूड नहीं देता, ये हमें एक ट्रस्ट डेवलप करता है आगे के जीवन के लिए, एक भरोसा विकसित करता है आगे के जीवन के लिए, जो बाद में अनेक फॉर्म्स में देखने को मिलता है। ये विल के रूप में हो सकता है, ये पर्पस के रूप में हो सकता है, ये कॉन्फिडेंस के रूप में हो सकता है, ये सेल्फ एस्टीम के रूप में हो सकता है, ये अनेक रूपों में हमें देखना होता है। तो जो सिगमंड फ्रायड का जो पहली अवस्था है कि जैसे ही मैंने जन्म लिया, मैं माँ के गोद में आ गई और माँ मेरे लिए रोल मॉडल हो गई। हम यदि बाटा का एडवर्टीजमेंट देखें, जो कि आपके फुटवेयर में देखने को नहीं मिलता, बाटा का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें हम देखते हैं कि छोटी लड़की ने बड़ा चप्पल पहना हुआ है। इसके पीछे जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो क्या है कि वो माँ जैसा ही रोल प्ले करना चाहती है, माँ जैसा ही होना चाहती। तो हमारे लिए हमारी फर्स्ट रोल मॉडल हमारी मदर होती। एक नेचर एंड नर्चर का बड़ा डिबेट चला कि मदर जो है वो एक बच्चे को इतना सेंसिबल, केयरिंग और कंपेशनेट बनाती है। वॉटसन ये कहते हैं कि मुझे आप 10 बच्चे दे दीजिए और आपके चॉइस का मैं उसे इंसान बना दूंगा, जो आप कहेंगे। उस किसी को लंपट, अपराधी, स्कॉलर, जो आप चाहते हैं वो मैं उन्हें निर्मित कर दूंगा। अर्थात नेचर तो हमें जो जो देता है वो देता है, लेकिन जो नर्चर है, जो पोषण है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। हमने माता पिता से जो डीएनए प्राप्त किया, हाइट, वेट, कॉम्प्लेक्शन, रंग, रूप, वेशभूषा, इतनी सारी चीजें हमने प्राप्त की, हमारा आईक्यू, इंटेलिजेंस लेवल, हमारा एप्टीट्यूड, हमारी एबिलिटीज, लेकिन फिर भी हम प्रकृति की बातों को पोषण के द्वारा शेप कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि हम बहुत सारी क्वालिटीज इनबोर्न लेकर आते हैं, इनेट लेकर आते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो नर्चर के द्वारा, पोषण के द्वारा स्थापित की जा सकती हैं, और नर्चर को हम कभी भी भूल नहीं सकते। वॉटसन जो कि बिहेवियरिस्ट है इस बात को मानते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर, जो ये कहती हैं कि एक बालिका या बालक का विकास उसके पोषण, यानी उसके एनवायरनमेंट, उसके सराउंडिंग, उसके क्लाइमेट, और कितने लोग उससे प्रतिदिन इंटरेक्ट करते हैं, इस पर निर्भर करती है। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्टडी हुई जो कि एडवर्ड और ज्यूक्स वंश की थी। एडवर्ड एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और उनकी वाइफ भी विदुषी थी, वहीं ज्यूक्स एक अपराधी थे और उनकी पत्नी का चरित्र कुछ अच्छा नहीं था। इनके 7 जनरेशंस का अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि एडवर्ड के जनरेशन में सारे लोग स्कॉलर्स और इंटेलिजेंट हुए, वहीं ज्यूक्स के जनरेशन में ये बात देखी गई कि वहाँ का जो प्रोडक्ट था वो सभी बच्चे खराब कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आगे बढ़े। तो क्या नेचर ही बलवान है या नर्चर बलवान है, इस पर हमें आगे जाकर विचार करना होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो ये कहता है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता। यानी माँ हमें क्या क्या देती है, वो सर्व क्षमताशाली है, वो हमें पीस, शांति देती है, हमें फेथ, फिडेलिटी, वफादारी डेवलप करती है, लॉयल्टी डेवलप करती है, हमारी स्मृति को स्ट्रांग बनाती है, हमें दया, कंपेशन, संतुष्टि, ऐसी बातों का समावेश करती है। ऐसे बहुआयामी माँ जो हमारे श्लोकों में भी जिसका निर्धारण मिलता है, उसको हम कई बार वैसा वेटेज नहीं देते जैसा हमें देना चाहिए। अगर हम मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को देखें तो हमारे स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, सर आपको बताना चाहूंगी कि एक तेजस्वी योजना चला करती थी जो ये कहती थी कि बच्चे को अगर तेजस्वी बनाना है, ब्राइट बनाना है, इंटेलिजेंट बनाना है, तो गर्भस्थ शिशु की ही हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा कॉग्निटिव फंक्शन
गर्भ में यानी फीटल काल में ही डेवलप होता है। जो भी उसका इंटेलेक्ट है, जो उसका परसेप्शन है, जो उसका मेमोरी, रिकॉग्निशन, ऐसी जितनी भी कार्य हैं वो गर्भ अवस्था में विकसित होती हैं। अर्थात जब हम शिशु को कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, जब वो हमारे गर्भ में आता है, उसी दिन से उसका बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और ओवरऑल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जिसका हमें कई बार ध्यान नहीं रहता है और जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। अभिमन्यु को हम देखें तो ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो मदर जो है जिस दिन कंसीव करती है उसी दिन से उसे बच्चे के मेंटल हेल्थ, उसकी बेसिक नेसेसिटीज का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तेजस्वी योजना जो कि हमारे स्टेट के महिला बाल विकास में लागू है, ये कहता है, और इसको बनाने में, इस पॉलिसी को बनाने में हम लोगों ने भी योगदान दिया था। तेजस्वी योजना ये कहती है कि जो फीटल डेवलपमेंट है, जो एक शिशु का गर्भस्थ विकास हो रहा है, उस दौरान वो अपने माता के संपूर्ण कल्चर को, अपने फैमिली के संपूर्ण कल्चर को, संपूर्ण स्वाद को, टेस्ट को, बातचीत को सीखता है और फैमिलियरिटी डेवलप करता है कि मेरे इर्द गिर्द कौन कौन लोग जन्म के बाद मुझे मिलने वाले हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जो शिशु है सबकी गोद में नहीं जाता, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करता है और कुछ लोगों को नहीं करता है। एक और स्टडी ये कहती है कि माँ जो भी खाती, जो उसका टेस्ट डेवलप होता है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं कि जो टेस्ट डेवलप होता है और जो आपकी संस्कृति में अनेक फंक्शंस होते हैं जो कि 7th और 9th मंथ में होते हैं, जिसे इन दिनों हम बेबी शावर कहते हैं, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो शिशु के कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, सामूहिक अचेतन में उसे ये सिखाते हैं कि उसे आगे जाकर किस प्रकार का इंसान बनना है और वो किस फैमिली में जन्म लेने वाला है और वहाँ की संस्कृति, आचार विचार, कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ के रहन सहन का तरीका क्या है, ये वो उसी अवस्था में जब वो फीटल कंडीशन में होता है तो जान लेता है। एक और स्टडी ये कहती है कि बहुत सारे जो मानसिक कार्य हैं, जैसे माँ की आवाज को पहचानना, पिता की आवाज को पहचानना, अजनबी की आवाज को नहीं पहचानना, और माँ जो कहानियां पढ़ती हैं, माँ जो स्टोरीज अपने मन में पढ़ रही हैं, या माँ जो गाने सुन रही हैं, ये सारी बात शिशु ध्यान से सुनता है और उसके अकॉर्डिंगली आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद उसका व्यवहार रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है जो ये कहता है कि माँ को इस दौरान एक अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए अगर उसे एक अच्छा नागरिक बनाना है। अगर बेटी का डेवलपमेंट अच्छा करना है तो हमें ये ध्यान, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा शिशु क्या है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम क्या बातचीत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर दरवाजा भी आपने धड़ाम से बंद किया तो इससे भी शिशु को सदमा लग सकता है और उसकी पर्सनालिटी फियरफुल प्रकार की या फोबिक प्रकार की हो सकती है। आगे वो भयभीत पर्सोना को लेकर पैदा हो सकता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान गर्भावस्था में ही रखना चाहिए। और हमने ये देखा है, जो हमारी दादी नानियां होती थी, जो घर के हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, इस बात को बहुत ध्यान से हमें हमेशा से बताते रहते हैं कि कैसे बैठना है, किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। ये सारी बातें हमें गर्भ के दौरान बताई जाती हैं। ये भी कहा गया है कि जो फीटस होता है वो माँ के हंसने पर बहुत तेजी से बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स करता है। अगर हम इस दौरान कोई अल्ट्रासाउंड लें, जब माँ हंस रही है और इस दौरान हम कोई अल्ट्रासाउंड लें, तो हम ये देखते हैं, वो अल्ट्रासाउंड भी मैं आपको दिखाना चाहती थी कि शिशु भी जोर जोर से हंसता है और जोर जोर से गर्भ में खेलता है। यानी आपके लाफ्टर का उसके वेल बीइंग पर कितना असर पड़ता है, उसके कल्याण पर कितना असर पड़ता है। वो भी बम 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 करता है और गोल गोल घूमता है और बहुत तेजी से माँ की हंसी में पार्टिसिपेट करता है। और ये जो बच्चा होता है वो आगे बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप का होता है और बहुत ही उसका जो व्यक्तित्व होता है विटी होता है, शानदार होता है। वो बहुत ही लोगों को लविंग एंड केयरिंग प्रकार का होता है और कंपेशनेट होता है, दयालु होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम डेवलपमेंट या विकास की बात इन दिनों तब से नहीं करते जब बच्चे का जन्म हुआ,
हम उसके विकास की बात तब से करते हैं कि उसे हम तेजस्वी कैसे बनाएं। जिस दिन से माता ने शिशु को कंसीव किया उस दिन से हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक बहुत भयभीत कर देने वाली स्थिति है कि शिशु इस जब दुनिया में आता है, बेबी जब इस दुनिया में आती है, तो ये उसके लिए कोई बड़ा आसान नहीं होता। इसके लिए बड़ा कहना चाहिए उसके लिए बहुत स्ट्रांग, जिसको कहते हैं कोपिंग, कि अभी मुझे सरवाइव करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है, शिशुओं का जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ बच्चे कोपिंग नहीं कर पाते, ठीक से सांस नहीं ले पाते, माँ का दूध नहीं पी पाते। यहाँ से हमें देखना है कि ये जो कोपिंग एबिलिटी है, कि क्या तनाव झेलने का तरीका है, कि ये जो एडजस्टमेंट है जब वो माँ के गोद में आ गया है वो किस प्रकार से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो अटैचमेंट है जो माँ के साथ विकसित हुआ, जैसे माँ सिजेरियन बेबी अगर हुई तो हमने उस बेबी को थोड़े दिन के लिए अलग रख दिया और माँ उसको अपना फर्स्ट मिल्क नहीं दे पा रही है और उसको पहली बार ऐसे गोद में नहीं ले पा रही, अपने लैप में नहीं ले पा रही, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी पर आगे जाकर पड़ेगा और वो आम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि उसने माँ का ब्रेस्ट फीड भी नहीं किया है और साथ साथ माँ ने उसे इस तरह कंधे में रखा भी नहीं है, उसे थपथपाया भी नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ थपथपाने या लैप में लेने की जरूरत क्यों है? सिक्योरिटी के लिए, बॉन्ड के लिए, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, जो आगे जाकर उस शिशु में विकसित होनी। तो अब जब माँ उसे इस तरीके से अपने गोद में लेती है, अपने सीने से चिपकाती है, तो ये जो चीज होती है उसे संरक्षण प्रदान करती है कि यस आई एम देयर, मैं तुम्हें देख रही हूँ, डोंट वरी, मैं यहाँ पर हूँ और आपकी देखभाल करूंगी। और ये संरक्षण उसमें ट्रस्ट का प्रादुर्भाव करता है, विश्वास, भरोसा। कई बार आपने देखा होगा कि हम घर से निकलते हैं और ताले को बार बार चेक करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सनालिटीज हैं उनकी माँ ने उन्हें गोद में फर्स्ट डे नहीं लिया है और बिल्कुल उनको अपने सीने से नहीं चिपकाया। तो छोटे छोटे जो आपके बिहेवियर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी माँ ने आपके साथ फर्स्ट डे कैसा व्यवहार किया है। अगर उसने आपको गोद में नहीं उठाया, अपना फर्स्ट मिल्क नहीं पिलाया, तो आप में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, आप में भरोसे के विपरीत सबके प्रति एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा और मिसट्रस्ट होने से होप नहीं डेवलप होगा। होप या आशा, आपके व्यक्तित्व में ऑप्टिमिज्म जिसे हम कहते हैं, आशावादिता, तभी विकसित होगा जब आप में ट्रस्ट विकसित होगा। तो ये माँ पर है कि वो बच्चे को ट्रस्ट देती है कि मिसट्रस्ट देती है, ये उस पर होता है। जो फादर ऑफ साइकोलॉजी है फ्रायड, वो कहते हैं कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, माता के साथ बालिका का अटैचमेंट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और वो हेल्दी अटैचमेंट होना चाहिए। ये एक छोटी सी घटना लिखते हैं कि जब मैं 2 साल का था तो मैं बैठा हुआ था और मेरी माँ स्वेटर बुन रही थी। अब देखिए इस घटना का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए कि मैं बैठा था और मेरी माँ स्वेटर बुन रही थी, यानी माँ मुझे अटेंड नहीं कर रही थी। और ये जो बच्चा है वो आगे जाकर ऑब्जर्वर जैसी पर्सनालिटी डेवलप करेगा, वो निरीक्षण करता बनेगा, वो इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके इमोशनल बॉन्ड्स लोगों से कम होंगे क्योंकि वो अभी सिर्फ देख रहा है, माँ के साथ उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उसकी कोई भागीदारी नहीं है। तो ये जो स्टेबल रिलेशनशिप है, एक जो स्थिर संबंध जो है माँ के साथ शिशु का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसे लोग जिनके डिवोर्स बहुत होते हैं, जिनके तलाक बहुत होते हैं, उनके चाइल्डहुड में ऐसे ट्रॉमास होते हैं, ऐसी दिक्कतें होती हैं कि वो बचपन में अपनी माँ के साथ जो अटैचमेंट होना चाहिए वो डेवलप नहीं कर पाए। फ्रायड कहते हैं कि जो माँ बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती है वो गलीबल प्रकार का हो जाता है। गलीबल यानी आसानी से दूसरों के बातों में आ जाता है और इसके साथ साथ वो टाइट लिप्ड होता है, घुन्ना प्रकार का व्यक्तित्व बन जाता है, बिल्कुल नाप तौल के बातचीत करता है और इसके साथ साथ वो कहता कुछ है लेकिन कहना कुछ और करता है, कहना कुछ और चाहता है, व्यंग्यात्मक या सार्केस्टिक पर्सनालिटी का हो जाता है।
क्योंकि माँ ने उसे दूध नहीं पिलाया तो मुंह से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्सेस उसमें आ जाते हैं। तो यहाँ जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसमें तो ये चीज खत्म हो रही, और इसलिए हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे साइकोपैथी बढ़ रही। यहाँ एक चार्ट दिखाई दे रहा है जो कि एरिक एरिक्सन का है, क्योंकि बड़ा ही इलाबोरेटिव ये टॉपिक है। ये तो अटैचमेंट कहाँ से आया, कैसे अटैचमेंट आप डेवलप करेंगे? आपने देखा होगा माँ पागल हो जाती है शिशु से बात करते हुए, उसकी अपनी भाषा होती है शिशु से बात करते हुए। किसी एक जगह जो कि महिला एंड बाल विकास का कार्यक्रम था, वहां मैं लोरी साइकोलॉजी पर बात कर रही थी, तो कम से कम 150 माताओं ने ये कहा कि उन्होंने लोरी कभी गाया नहीं बच्चे के लिए। तो लोरी गाना बहुत बहुत इम्पैक्टफुल होता है, बहुत प्रभावशाली होता है, और लोरी का हमारी साइकी पर एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और ये जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है वो आगे हमें विजडम देता है, बुद्धिमत्ता देता है। जो आखिरी की अवस्था है उसमें हमें विजडम और बुद्धिमत्ता देता है, और हमें एक ऐसा इंसान बनाता है जो पीछे देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, मेरी लाइफ में मैंने सब कुछ अकम्प्लिश किया है, कोई भी चीज कमी नहीं। तो उनके साथ हंसना, बोलना, खेलना, बातचीत करना, ये नहीं कि उन्हें हमने झूले में डाल दिया। आप देखिए ना, जो लेबर वर्क की माताएं होती हैं बच्चे को अफीम चटा देती हैं, क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता है। तो जब वो काम पर आएंगी 6 घंटे के बाद तो बच्चा सोता रहेगा, तो सोचिए उसका क्या डेवलपमेंट होगा, उसका क्या विकास होगा। 6 घंटे वो बेसुध सोया हुआ है, उसके साथ कोई भी इंटरेक्ट करने वाला नहीं है, कोई भी उसके साथ बातचीत करने वाला नहीं है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें। ये ध्यान रखना कि हमारी बालिका ठीक से सोई है या नहीं, उसे समय पर हम भोजन दे रहे हैं कि नहीं, उसे संरक्षण दे रहे हैं कि नहीं, उसके लिमिट्स में हमें काम करना है। अपना फेशियल एक्सप्रेशन बहुत पॉजिटिव रखना, हमारा जो हाव भाव है शिशु के साथ वो बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। जो आवाजें घर में हो रही हैं वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उसके नीड्स के साथ, पानी को हम मम कहते हैं। आप देखिए पूरे भारत में मेरे ख्याल से हर माता उसे मम ही कहती होगी। तो ये भाषा कहाँ से आ गई? क्यों ऐसे कम्युनिकेशन की हमें जरूरत पड़ी? ताकि हम उसमें ट्रस्ट डेवलप कर सकें। ये भी देखा गया है कि जहाँ बार बार आया बाई बदलती है, नैनी बदलती है, जहाँ कोई घर का बड़ा बुजुर्ग नहीं रहता, वो बच्चे बहुत ही मिसट्रस्ट को डेवलप कर लेते हैं और उनके जीवन में आशावादिता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, और सुसाइडल आइडिएशन उनमें बढ़ जाता है। आत्मघाती संबंधी विचार उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वो अपना जीवन नॉर्मल नहीं जी पाते। तो जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते। 18 से 24 महीने में जो बिटिया हुई उसको हम थोड़ा सा, उसको जेंडर का आभास हो जाता है कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। यहाँ पर एक बात और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का नाम यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक बात और बताना चाहती हूँ। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहना देती हैं, और ऐसा 2 साल तक करती रहती हैं। ऐसा मत करिए, इससे आगे जाकर वो लड़कों के कपड़े में बेचैनी महसूस करेगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा, और आगे जाके हो सकता है उसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो जाए, लिंग पहचान विकृति हो जाए, और वो सोचे कि मेरा जेंडर भले ही मैं पुरुष हूं लेकिन मैं स्त्री जैसा महसूस करता हूं। और आपने देखा होगा कि जो जेंडर को लेकर, क्योंकि जो सेक्स है वो तो हमारी बायोलॉजी है, वो हमारी जैविक संरचना है, लेकिन जेंडर क्या है? व्हाट आई फील अबाउट माई सेक्स, मेरा साइकी क्या है। अगर मैं एक लेडी हूं और पुरुष जैसा महसूस कर रही हूं तो मेरा जेंडर पुरुष है, और अगर मैं एक पुरुष हूं और स्त्री जैसा महसूस कर रही हूं तो मेरा जेंडर स्त्री है। तो ये चीज मदर को ध्यान रखना होगा कि बच्चे को बाकायदा ये बताए कि वो लड़की है या लड़का। उसके कपड़ों के माध्यम से, उसके खिलौनों के माध्यम से माँ ऐसी कोशिश करती है कि लड़कों को वो जीप, कार, पिस्तौल ऐसे खिलौने ला कर देती है जो कि थोड़े कॉम्पिटिटिव प्रकार के होते हैं, और लड़कियों को वो दूसरे प्रकार के डॉल्स वगैरह या किचन सेट जैसे खिलौने क्यों देती?
क्योंकि उनमें वो एक सेक्स रोल डेवलप करना चाहती है, एक लिंग भूमिका डेवलप करना चाहती है। लड़की को वो कंपेशन सिखाती है, दया सिखाती है, सेक्रीफाइस सिखाती है, टेंडरनेस सिखाती है। वहीं लड़के को वो कॉम्पिटिटिव होना सिखाती है, टफ होना सिखाती है, उसको तनाव झेलना अधिक सिखाती है। और ये जो फर्क होता है, इसके कारण कहीं ना कहीं स्त्रियों को कई बार कहा जाता है कि वो कमजोर होती हैं, डोसाइल होती हैं, सबमिसिव होती है। ये हमारी गलती नहीं, ये हमारे ट्रेनिंग में जो फर्क आता है। कुछ दिन पहले दूरदर्शन में एक एडवर्टीजमेंट आया करता था जिसमें कहा जा रहा था कि लड़के रोते नहीं, है ना। ये एडवर्टीजमेंट जो था जेंडर सेंसिटिव नहीं था, और इस पर बड़ी भारी चर्चा हुई कि क्यों भाई लड़कियां ही क्यों रोती हैं, लड़के क्यों नहीं रोते, क्यों माँ ने ऐसा क्यों सिखाया है। तो लड़कों को अगर हमने बहुत दिन तक लड़कियों के कपड़े पहना दिए तो हो सकता है आगे जाकर वो ये भूल जाए कि मेरा लिंग क्या है, मेरा सेक्स क्या है, मेरा जेंडर क्या है। तो इसका ध्यान मदर को रियर अप करते हुए रखना चाहिए। कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपनी बालिका से या अपने चाइल्ड से, कैसे कम्युनिकेट करते हैं कि वो भूखा है आप समझ जाते हैं, वो जगा हुआ है समझ जाते हैं, वो रो रहा है उसका कारण क्या है आप समझ जाते हैं, बेचैन है कुछ काट लिया है, सारी बातें आप समझ जाते हैं क्योंकि आप मदर हैं। तो कौन सी ऐसी भाषा है जिससे आप सारी बात उसकी समझ जाते हैं। जो इंटरेक्शन आप उससे कर रहे हैं वो बहुत जेस्चर्स के द्वारा है, हाव भाव के द्वारा है, लेकिन ये बॉन्ड इतना सॉलिड क्यों है, इतना लॉन्ग लास्टिंग क्यों है, माँ शिशु की बात क्यों सारी बातें समझ जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू। ये देखा गया है कि जो माताएं अपनी बालिकाओं से या कह लीजिए बालकों से भी ठीक से अटैचमेंट नहीं रखती हैं, जैसा कि फ्राइड ने बताया कि पहले तो आपने दूध नहीं पिलाया ठीक से, फिर उसे टॉयलेट ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं दी, बहुत सारे स्टेजेस हैं जो हम यहाँ पर नहीं ला सकते। तो माँ जो जब टॉयलेट ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं देती है तो शिशु क्या करता है, मल मूत्र को रोकना सीख जाता है और वो बाद में कैसा हो जाता है, रिटेंटिव कैरेक्टर का हो जाता है, कंजूस व्यक्तित्व बन जाता है। तो अब जो जीवन में आपको कंजूस लोग मिलते हैं, इसका मायने ये है कि माँ ने उसको बचपन में टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी। अगर वो ठीक से टॉयलेट ट्रेनिंग देती तो उसका पर्सोना अलग डेवलप होता। तो ये जो अटैचमेंट माँ के साथ हुआ, अगर वो ठीक नहीं है तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, और जो लड़की होती है उसे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर हो जाता है। आगे जाकर वो अपने हस्बैंड के साथ भी ठीक से अटैचमेंट नहीं कर पाएगी, उसको उस अटैचमेंट में भी दिक्कत होगी, वो वहां भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगी, और उसके सारे अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस जो एडल्टहुड में होंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। उसके बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, वो उसको कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, किसी से उसकी निभेगी नहीं। ये सारी बातें बचपन से स्टार्ट हुई हैं, आज इसे आप करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब आप एडल्ट हो चुके हैं। तो इसे अभी इस लेवल पे करेक्शन करने के लिए हमें बहुत लंबी योजना बनानी होगी, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी का डिफेक्ट जो है वो शिशु अवस्था से शुरू हो गया है और वो माँ के कारण हो गया। अगर हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को देखें तो दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक जो बालिकाओं को स्वतंत्रता देते हैं और एक जो नहीं देते। हर बात पर टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे बैठिए, ऐसे खाइए, ऐसे सोइए, ऐसे बोलिए। तो क्या होता है, वो शिशु स्वायत्तता के बदले शर्म विकसित कर लेता है, और शर्म के अभाव में उसकी इच्छा शक्ति, उसका विल पावर समाप्त हो जाता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। यहाँ पे मैं पन्ना धाय की कहानी आपको बताना चाहूंगी। एक बार मैं स्वामी सत्य स्वरूपानंद जी का भाषण सुन रही थी, तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात बताई कि जननित्व क्या है और मातृत्व क्या है, कि बायोलॉजिकल मदर से भी बड़ी क्या वो माँ हो सकती है जिसने पाला है। तो पन्ना धाय का एग्जाम्पल यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है कि उदय सिंह को बचाने के लिए उन्होंने अपने शिशु को वहां सुला दिया, और विरोधी लोग आए और उनके शिशु को उदय सिंह समझकर मार गए, और वो उस उदय सिंह को लेकर निकल। तो सोचिए यहाँ जननी से बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया है, कि वो बायोलॉजिकल मदर नहीं थी, वो सिर्फ एक धाई माँ थी, लेकिन उन्होंने उनकी पर्सनालिटी आप देखिए कि उनमें मातृत्व का गुण कूट कूट कर भरा था।
जो मदरलीनेस था उनका वो कितना महान था, यहाँ हम देखते हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी माताएं जो होती हैं वो शिशु में ऑटोनॉमी का विकास करती हैं। वो कहता है मैं खाना अपने मन से खाऊंगा तो माँ मना कर देती है, डांट देती है। पेंसिल छीलूंगा, माँ मना कर देती है। हम कहते हैं साइकोलॉजी में कि बच्चा जो अपने मार्क्स लेकर आएगा वही उसके बेस्ट मार्क्स हैं, जो आप पढ़ा रही हैं वो उसके मार्क्स नहीं। तो जो बालिका को आप विकसित कर रहे हैं तो उसको आपने कितनी ऑटोनॉमी दी, कितनी स्वायत्तता दी, कितनी छूट दी। ऐसा तो नहीं उसमें शर्म और संदेह विकसित हो गया। ये बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मदर एज अ केयर गिवर बिल्कुल ऐसा बैलेंस रखे कि कितना रिवार्ड देना है, कितना पनिशमेंट देना है। बात बात पर टीका टिप्पणी यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर एक मनोग्रंथि विकसित हो जाएगी, एक कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाएगा और वो आगे जाकर वो जो कॉम्प्लेक्स है वो अनेक रूपों में उसकी पर्सनालिटी डिफेक्ट के रूप में दिखाई देगा। अगर हम अटैचमेंट को देखें तो बाउल्बी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि माँ का जो अटैचमेंट होता है बालिका के साथ मदर डॉटर रिलेशनशिप में वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके सोशल इंटरेक्शन आगे जाकर, अब मैं माँ हूँ, मैं पुत्री भी हूँ, तो जब मैं माँ बनी तो मेरा जो सोशल इंटरेक्शन है वो इस बात से प्रभावित होगा कि मेरी माँ ने मुझे कैसा पाला है, कैसे नर्चर किया है, क्या सिखाया है, उसने कितनी जेनरोसिटी मुझे दी है, कितनी उदारता दी है, लोगों को कितना केयर करने के लिए मुझे बताया है। ये सारी बातें तब मुझ पर दिखाई देंगी जब मैं भी एक माँ बनूंगी। तो उन्हीं चीजों को लेकर मैं अपनी डॉटर की में उस वेलबींग को ट्रांसफर करूंगी और उसके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाऊंगी, आत्मगौरव। आधे से ज्यादा बच्चे तो अभी देखिए एक छोटा सा केस आया जिसमें एक लड़के ने जो कि 11th क्लास में पढ़ता था अपनी प्रोफेसर को आई लव यू कह दिया और वो इतना ऑब्सेस्ड हो गया उससे कि उसने सोच लिया कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा क्योंकि मेरी जो टीचर है वो मुझसे प्यार नहीं करती है और मैं उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। तो देखिए कितना आइडेंटिटी क्राइसिस है बच्चों में, कितनी पहचान संकट है कि हम ये बता ही नहीं पा रहे हैं उसको कि कौन किसके साथ हमें क्या रिलेशन रखना है, इसका भान ही हमें नहीं। तो जो वेलबींग है वो हमारा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है, हमारा सेल्फ एस्टीम नीचे जा रहा है, एस्पिरेशन लेवल हमारा नीचे गिर रहा है, इसको भी हमें ध्यान देना होगा। जब हम अटैचमेंट की बात करते हैं अपनी बालिका के साथ तो 4 प्रकार के बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहला है प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस, कि हम उसके पास कितना रहते हैं, कितनी बार उसको हक करते हैं, उसको प्यार करते हैं, अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेफ हेवन, क्या हम उसे सिक्योरिटी प्रदान करने में समर्थ हैं या असमर्थ हैं। आप सभी की भी डॉटर्स होंगी, बेटे भी होंगे, तो हम क्या उन्हें वो सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, इमोशनल सिक्योरिटी दे पा रहे हैं, कोई संवेगात्मक सुरक्षा दे पा रहे हैं या नहीं, या वो भयभीत हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, भयभीत करने वाली दशा हो, तो हम अपने शिशु को, अपने बच्चे को, अपनी बालिका या बालक को ये बता पाए कि हम हैं यहाँ पर और आपको देख रहे हैं। फिर एक और बात है कि सिक्योर बेस जो है कि माँ के होने के नाते कि उसकी जितनी नीड्स एंड डिमांड्स हैं, देखिए नीड का जो बेसिस होता है वो फिजियोलॉजिकल होता है, दैहिक होता है, जैसे भूख प्यास नींद, और डिमांड्स जो होती हैं थोड़ी साइकोलॉजिकल होती हैं, जैसे मुझे भूख तो लगी है लेकिन मैं सिर्फ लड्डू खाऊंगा, लड्डू के अलावा कुछ नहीं खाऊंगा, तो लड्डू जो है डिमांड है और भूख लगना जो है वो नीड है। तो माँ क्या बच्चे को सारा वातावरण एक्सप्लोर करने दे रही, घूम रहा है, पटक रहा है, कोई चीज निकाल रहा है, निकाल रही है, तो क्या माँ उसे रोक रही, क्या उसने उसको बड़े झूले में बंद करके कैद करके रख दिया है, क्या उसको संसार को ढूंढने की स्वतंत्रता आपने दी है या नहीं दी है। तो ये भी एक अटैचमेंट बिहेवियर है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बालिका या बालक को पालते हुए हम इस बात का ध्यान रखें कि उसको हम अपने पूरे घर को एक्सप्लोर करने की छूट दें। फिर सेपरेशन डिस्टेंस, अक्सर ये देखा गया है कि जो कैरियर वुमन होती हैं जिनके यहाँ मेड बार बार बदलती है,
वहाँ की जो बालिका होती है वो एंजाइटी डेवलप कर लेती है, क्योंकि उसे रोजाना नए नए लोगों के साथ अकोमोडेट करना होता है, रोजाना नए नए लोगों के साथ तालमेल रखना होता है, रोजाना नए नए लोगों के साथ कोपिंग करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ दिनों पहले एक बहुत अच्छी बात किसी ने एक मीटिंग में कही, अब जब बच्चे बिगड़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ग्रैंड पेरेंट्स घर में होना चाहिए। पहले हम उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, उनको हम न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते थे। लेकिन एक सेमिनार में किसी व्यक्ति ने ये कहा कि चूंकि अब बच्चे बिगड़ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, दिन भर टीवी देख रहे हैं, जाने क्या क्या एसेस कर रहे हैं नेट पर, तब हमें लगता है कि ग्रैंड पेरेंट्स को घर में होना चाहिए। तो ग्रैंड पेरेंट जो देखेंगे नेचुरली, जो आयाबाई देखेगी, वो उससे बहुत फर्क होगा, और वो जो अटैचमेंट होगा वो बिल्कुल भिन्न किस्म का होगा। ये देखा गया है कि जिन बच्चों को आप लिबर्टी नहीं देते हैं, जिन बच्चों को आप बिल्कुल बांध कर, बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो होते हैं, दो प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, एक तो बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं और एक बड़े परमिसिव होते हैं। तो जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बालिकाओं को बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं देते, बिल्कुल बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत सारे रूल्स में बच्चों को रखते हैं। ये बच्चे आगे जाकर ये भूल जाते हैं कि उन्हें, उनकी कोई सेपरेट एंटाइटी भी है। वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने माता पिता पर डिपेंड हो जाते हैं, और उनमें एक अपराध बोध, एक गिल्ट डेवलप हो जाता है, और ये आगे जाकर उनकी पर्सनालिटी पर इतना खराब प्रभाव डालता है कि और भी जो रिलेशनशिप्स होंगे वो उनके इस बात से प्रभावित होंगे, और उनका विल पावर भी जो है वो इससे प्रभावित होगा, इच्छा शक्ति उनकी डेवलप नहीं होगी। जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं तो सेल्फ एस्टीम क्या है, आत्मगौरव क्या है, कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। तो लड़की को जब हमने डेवलप किया तो क्या हमने उसे सिखाया कि आप क्या हैं। आप हमारे समाज में अगर एक स्त्री बड़ी सक्सेसफुल हो जाती है तो लोग ये सोचते हैं उसने जरूर अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट किया होगा, और इसलिए उसको फियर फॉर सक्सेस होता है, वो एप्रीहेंशन होता है कि नहीं भाई, मैं आगे का प्रमोशन जो है फोरगो कर देती हूँ, मेरी फैमिली जो है नेग्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा सोसाइटल परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार का है। ये वाली बात हमको देखने को मिलती है। तो क्या हमने उसकी कैपेबिलिटी, लड़की को या लड़के को उसका पोटेंशियल हमने बताया है, उसकी क्षमता हमने बताई है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। टू नो दाई सेल्फ जिसे कहते हैं, कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरा सेल्फ एस्टीम क्या होना चाहिए, मेरा आत्मगौरव, मेरा एस्पिरेशन लेवल क्या होना चाहिए, मुझे क्या प्राप्त करने की मुझ में योग्यता है और क्या प्राप्त करने की योग्यता नहीं, ये आपको जन्म से सिखाना होगा उसे। उसका जो अचीवमेंट लेवल है वो आपको डिसाइड करना होगा, एज ए टीचर भी, एज ए पेरेंट भी। कि जो लोअर्ड सेल्फ एस्टीम वाले बच्चे आपके पास आते हैं, जिनका आत्मगौरव बहुत कम है, एज ए टीचर उन्हें बताइए कि वो क्या डिजर्व करते हैं और उनमें क्या योग्यता है जो उनके पेरेंट्स ने उनमें डेवलप नहीं किया है। तो पेरेंटल लेवल पे यदि छूट गया तो हम अपने शैक्षणिक वातावरण में इसको डेवलप कर सकते हैं और उसको एनहांस कर सकते हैं। ये देखिए, एक बिल्ली आईना देख रही है तो उसे शेर दिख रहा, ये है एग्जाजरेटेड सेल्फ एस्टीम, कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है लेकिन मैं बहुत आसमानों के ख्वाब देख रहा हूँ कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन वो कैपेबिलिटी मेरे में है नहीं, क्योंकि जो हमारा सेल्फ एस्टीम है, जो हमारा आत्मगौरव है, वो माता पिता ने इतना एनहांस कर दिया है कि जो वास्तविक मेरा एस्पिरेशन लेवल है, मेरी आकांक्षा का स्तर है, वो धूमिल हो चुका है, उसको मैं जानती ही नहीं। और आईना देख रही हूँ तो मुझे अपने बारे में क्या क्या दिख रहा है, जो आप स्वयं देख पा रही हैं, कि ओवर एस्टिमेशन ना हो, अंडर एस्टिमेशन ना हो, लेकिन एक्चुअल कि हाँ मैं 60% पाने के लायक हूँ, ये बालिका जाने, और उसे ये फ्रस्ट्रेशन कुंठा ना हो कि मेरे जो है परसेंट 80 क्यों नहीं है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि आई डिजर्व ओनली 60%, मेरी यही एबिलिटी है, ये उसको पता होना चाहिए। अनेक ऐसी स्टडीज हुई हैं कि डॉटर्स का सेल्फ एस्टीम डेवलप करने में मदर का बहुत बड़ा रोल है, माँ की बहुत बड़ी भूमिका है।
क्या आप अपनी डॉटर से बातचीत करती हैं? क्या आपने कभी पूछा है कि वो क्या चाहती है? उसकी आकांक्षाएँ क्या हैं? उसकी मर्ज़ी क्या है? कौन से विषय को वो पढ़ना चाहती है या नहीं पढ़ना चाहती है? उसका साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग कैसा है? क्या उसने कभी कोई रेसिपी बनाई तो आपने उसकी प्रशंसा की? क्या उसको कभी आपने कोई रेसिपी सिखाई कि चलिए रेप्लिकेट कीजिए, मेरे जैसा बनाकर दिखाइए? कि फ्यूचर में आपको मदर होना है। देखिए कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं आप, लेकिन पारंपरिक भूमिका तो आपको निभानी ही होगी। ट्रेडिशनल रोल, पत्नी का, माता का, ये रोल तो आपको प्ले करना ही होगा। कोई कलेक्टर भी हैं, आईएएस भी हैं, तो वो भी मदर है, वो भी वाइफ है, तो वो भी वो रोल प्ले कर रही। तो कहीं ना कहीं हमको अपने बच्चे को ये बताना होगा कि मेरा जो कैलिबर है, जो व्यवसाय में कर रही हूँ, जिस प्रोफेशन में हूँ, उसके अलावा मेरा एक एस्पेक्ट और है। आई एम अ मदर टू। मैं वाइफ हूँ, भाभी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जितने सारे रोल्स मुझे सोसाइटी ने दिए हैं, उन सब में जो सामंजस्य बिठाना भी माता को सिखाना आना चाहिए। कि मैं, ये तब आप कर पाएंगे जब खुद आप उसको फॉलो करती होंगी, नहीं तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। देखिए रॉबर्ट स्टीवेंसन की एक बहुत अच्छी कविता है, जो बेसिकली एक नॉवेलिस्ट हैं। वो कहते हैं कि माँ, कभी मेरी राइम्स मेरे बड़े होने के बाद आप पढ़ोगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं छुन छुन करते हुए आपकी ओर आ रही हूँ, और आप उसी बचपने को फिर से महसूस करेंगी जो पहले आप किया करती थी। तो भूले भटके कभी लोरियां गा लिया करो, भूले भटके कभी नर्सरी राइम्स को सुन लिया करो। प्रीति सागर जी की बड़ी अच्छी नर्सरी राइम्स की एक एल्बम रिलीज हुआ था, जो हम लोग अपने बच्चों के लिए याद किया करते थे और उनको सुनाया करते थे। अगर एक गर्ल चाइल्ड को हमको पालन करना है, वैसे तो चाइल्ड ही हमें कहना चाहिए, लेकिन अगर हमें एक गर्ल चाइल्ड को पालन करना है तो हमें बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना होता है। एक है इन्फेंसी स्टेज, फिर है अर्ली चाइल्डहुड, फिर है एडोलेसेंट स्टेज, और फिर है एडल्ट स्टेज। वैसे तो अलग अलग लोगों ने, किसी ने 8 स्टेजेस दी हैं, किसी ने 10 स्टेजेस दी हैं, लेकिन बेसिकली हम इन स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो मदर और गर्ल चाइल्ड का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, उसे हम इन स्टेजेस में देखेंगे। कि एडोलेसेंट एज तक तो सब कुछ ठीक है। वहीं एरिक्सन ये कहते हैं 1 साल तक माँ लड़का और लड़की को एक जैसा पालती, लेकिन 1 साल के बाद उसके नजरिए में फर्क आ जाता है, वो लड़की को अलग पालती है और लड़के को अलग पालती है। अब ये बताइए, अगर हम किसी सिगरेट का एडवर्टीजमेंट देखें तो उसमें क्या लड़की अच्छी लगेगी हमें? नहीं, हम इससे आइडेंटिफाई नहीं करते। हमें लगेगा कि भाई ये क्या एडवर्टीजमेंट है। लड़की को सिगरेट के एडवर्टीजमेंट में या इसके एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है जो कि हमारे सोसाइटल परसेप्शन में सही नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लड़की को ऐसा देखना नहीं चाहते। आज जब सोशल मीडिया में हम अनेक बार ऐसी बातें देखते हैं तो कई बार हम इसके लिए आवाजें भी उठाते हैं। तो माँ का ये जो भेदभाव है वो जानबूझकर नहीं हो, कि वो लड़के को टफ होना सिखा रही है, लड़की को कंपेशनेट बना रही है, दयालु बना रही है, लड़के को कॉम्पिटिटिव बना रही है, लड़की को एडजस्टिंग बना रही है, लड़के को कुछ और खेलने दे रही है, लड़की को कुछ और खेलने दे रही है, लड़के को वो कह रही है कि स्ट्रांग बनो और लड़की को थोड़ा सा टेंडरनेस सिखा रही। तो ये उसके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में होता है। माँ के वो ट्रेडिशनली, कल्चरली ऐसा लेकर पैदा होती है, और इसलिए वो शिशु को ऐसा सिखाती है, जानबूझ के ऐसा नहीं करती कि मैं ऐसा सिखा दूं। लेकिन ये एक कहना चाहिए कि सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी है वो इस तरीके से हमारे मन में स्थापित हो गई है कि हम इस तरह से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और एडोलेसेंट होने के बाद तो हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि लड़की को हम कैसे देखें और लड़के को हम कैसा देखें। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली जो एज होती है 5 to 6 इयर्स की, इसमें हम बच्चों को 2 बातें सिखाते हैं। एक तो मेहनती होना, इंडस्ट्रियस होना, और दूसरा या तो इन्फीरियर बना दीजिए उन्हें, कि हर बात में डांटिए, पीटिए, मारिए, बाथरूम में बंद कर दीजिए। तो अभी आप उसे बाथरूम में बंद कर रहे हैं, जब बूढ़े हो जाओगे तो वो आपको करेगा, क्योंकि उसने यही सीखा है आपसे।
तो अगर आप इंडस्ट्रियस बनाएंगे उसे तो वो कॉम्पिटेंट होएगा, क्षमतावान बनेगा, उसमें एक पोटेंशियल डेवलप होगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो क्लास में जाकर हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को अपना स्कूल बैग खुद जमाने दीजिए इस एज में। उनको बिल्कुल इंटरवीन नहीं करिए कि नहीं भाई आप, हम जमाएंगे, हम करेंगे। और कुछ बच्चों को हमने देखा है एक छोटा सा स्किल नहीं आता है अभी। मैं कई बार देखती हूँ कॉलेज के बच्चे ताला खोलते समय उसे दूसरे डायरेक्शन में घुमाते रहते हैं। आप देखना बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। तो बच्चों को एक छोटा सा स्किल नहीं आ रहा कि टिफिन नहीं खोल पा रहे, क्योंकि मदर ने उसे इंडस्ट्रियस नहीं बनाया, उसे वो स्किल नहीं सिखाया, लाओ मैं खोल देती हूँ, लाओ मैं कर देती हूँ, लाओ मैं देख देती हूँ, मैं तो हूं ना। इतनी भी सिक्योरिटी नहीं देना, इतना भी वीक उसे नहीं बनाना है कि वो नॉन कॉम्पिटेंट हो जाए। तो लड़की को क्षमतावान यदि बनाना है तो उसे इंडस्ट्रियस होना सिखाइए, उसे इंफीरियर होना नहीं बताइए। उसे कहिए कि भाई हीनता नहीं है, आपको क्या सीखना है, उद्यमी होना है, परिश्रमी होना है, मेहनती होना है, आपको खुद सीखना है, आपको खुद करना है। अगर आप ऐसी बात सिखाएंगी तो आगे जाके वो कॉम्पिटेंट लेडी के रूप में डेवलप होगी। अब ये जो स्टेज है कि जो लड़कियां हैं लड़के हैं स्कूल जाने लगे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा जेंडर का भेदभाव आने लगा है, क्योंकि गर्ल्स टॉयलेट अलग है, बॉयज टॉयलेट अलग है, लड़कियों का रो अलग है, लड़कों का रो अलग है, प्रेयर रोज अलग हो गए और उनकी जो थिंकिंग स्टाइल है वो थोड़ी सी बदल गई है, क्योंकि टीचर भी इसको देखती। ये भी वही वाली स्टेज कि जेंडर आइडेंटिटी, कि मैं कौन हूँ उसको बताइए। कि गर्ल हो तो यू शुड फील लाइक अ गर्ल, अगर लड़के हो तो यू शुड फील लाइक अ बॉय। मस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, ये आपको उसको लर्न कराना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। अगर वो थोड़ा सा भी अभी एक बच्चे को हमने देखा कि वो 10 इयर्स का है और जो उसकी एक्चुअल केस है वो यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन वो अकेले में लड़कियों के कपड़े पहनकर बैठा रहता है स्कूल के टॉयलेट में। और किसी दिन उसके टीचर ने उसको नोटिस किया तो उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, तो उसने कहा कि वो इसी में कंफर्टेबल महसूस करता है और नहीं तो वो पढ़ाई छोड़ देगा। वो कह रहा है कि मैं लड़का हूँ लेकिन मैं इस कपड़े में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो ये इंडिकेट करता है कि उसे लिंग पहचान विकृति हो गई है, उसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया है और उसको हमें एड्रेस करना अभी जरूरी है। इसी स्टेज में उसे ये बताना जरूरी है कि भाई आप, यू आर ए बॉय, यू आर नॉट अ गर्ल, ये बताना उसको बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसके लिए परामर्शन आदि की सहायता ली जा सकती है। तो ये गलती कहाँ से हुई, कहीं ना कहीं माता ने अपनी भाषा में, अपने आचार विचार में, अपने जेस्चर में उससे बालिका जैसा व्यवहार किया होगा, शायद इसलिए वो इस प्रकार से बिहेवियर कर रहा है। ये देखना हमारे लिए जरूरी है। तो पूरी केस हिस्ट्री हमको लेनी होती है कि क्या रीजन है कि मैं जो जेंडर कैरी करती हूँ उसको महसूस नहीं करती। इसको देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट है लाइफ इंश्योरेंस का, बढ़ो बढ़ो मेरे संग बढ़े, बढ़ो बढ़ो। इस लिंक पर क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं, जो ये कहता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हम एक सेक्स रोल मॉडल सीखते हैं, लिंग भूमिका निर्वहन, कि लड़की की लिंग भूमिका क्या है और लड़के की लिंग भूमिका क्या है। हाउ अ बॉय शुड बिहेव, हाउ अ गर्ल शुड बिहेव, ये माँ ही उसे सिखाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्स रोल ट्रेनिंग आपने उसे ठीक दी है या नहीं। कई बच्चों को मैंने देखा है कि लड़कियां कहती मैं खाता हूँ, जाता हूँ, रहता हूँ, इस तरीके से उनका लैंग्वेज होता है। तो क्या ये सही है? तो उसे हमें करेक्ट करना होगा, एक निश्चित आयु में उसे हमें करेक्ट करना होगा। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो फैमिली और होम, घर से थोड़े दूर हो जाते हैं, उनका ओरिएंटेशन अलग हो जाता है, पीयर इन्फ्लुएंस। तो लड़कियां जब स्कूल गई तो अब उनका, उन पे जो प्रभाव होगा वो पीयर का ज्यादा होगा, उनके प्ले ग्रुप का ज्यादा होगा, खेल साथियों को ज्यादा होगा, और उनका इम्पैक्ट जो है पेरेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसको भी हमें देखना होगा। और जो सेल्फ एस्टीम है वो बड़ा ब्रिटल है, बड़ा नाजुक है, बहुत मतलब इसको बहुत ध्यान से हमको नर्चर करना होता है कि एक बच्चे का आत्मगौरव, एक लड़की का आत्मगौरव किस प्रकार से वो वर्थ फील करे। एम आई एडिक्वेट, क्या मैं पर्याप्त हूँ, ये उसको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्या मैं फिट हूँ अपने रोल में,
क्या मैं एडिक्वेट हूँ? थोड़ी सी भी इनएडिक्वेसी, थोड़ी सी भी अपर्याप्तता उसको सुसाइडल आइडिएशन की ओर ले जाएगी, उसको आत्मघाती विचार की ओर ले जाएगी, और उसकी जो थिंकिंग है लॉजिकल हो जाएगी, अतार्किक हो जाएगी, अनरीजनेबल हो जाएगी। तो मदर ये बिल्कुल ध्यान रखे कि मेरी बालिका अचानक शांत हो गई है तो क्यों हो गई, उसमें क्या ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ गया, उसको नोट करिए कि बातूनी लड़की चुप क्यों हो गई और इसके पीछे क्या कारण है। इसको हमें नोटिस करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए कि मेरी बालिका कुछ दिनों से चुपचाप क्यों है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें बालिका चुपचाप हो गई, फिर एक दिन हम माँ घर जाती है तो वो टंगी हुई मिलती है, उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि माँ होने के नाते हमने नोटिस ही नहीं किया कि उसके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, उसकी जो एडिक्वेसी है वो कैसे थ्रेटन हो रही है, किस तरीके से उसको घबराहट हो रही है, वो हमने देखा नहीं कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है, इस बात को भी मदर को ध्यान देना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी बात है कि सबसे पहली जो बालिका होती है माँ का ब्लाउज पहनती है और माँ से तादात्म्यकृत करती है, आइडेंटिफाई करती है। माँ अपने जेवर तुड़वा कर उसके लिए शादियों में जेवर बनवाती है, और ये ऐसा तब तक करती है जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता। इसे हम ट्रांसफरेंस कहते हैं, इसे हम जेनरोसिटी कहते हैं, उदारता कहते हैं, पेरेंटल केयर कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आत्मशोषित होते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं, जो कहते हैं कि वो खुद जाने, मैं क्यों उसको अपना सामान दूं। ऐसे भी पेरेंट्स हमने देखे हैं। तो बालिका का जो विकास है वो निर्भर करता है उसने क्या देखा है, उसकी माता को उसने क्या क्या करते हुए देखा है, उसको वो अनकॉन्शियसली ग्रहण करती जा रही है, और ऐसा ही व्यवहार वो अपने भावी जीवन में करेगी। इसलिए हमें इस जेनरसिटी को, इस उदारता को उसको बाकायदा देना चाहिए। अब जो एडोलेसेंट एज है वो आइडेंटिटी का है, ईगो इंटेग्रिटी का है, अहम संगठन का है। तो जो एडोलेसेंट बालिका है, यौवन अवस्था की बालिका है, उसमें रोल कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो, हमने अभी पिछले उसमें कहा कि वो एडुकेट फील नहीं कर रही है, उसको पर्याप्त नहीं लग रहा है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारे द्वंद्व हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, मेरा सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, मेरा एस्पिरेशन लेवल लो हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो उसको किस तरीके से आप लचीला बनाएं, उसको किस तरीके से उसमें अडेप्टेबिलिटी डेवलप करें, उसमें साहस विकसित करें, क्योंकि एडोलेसेंट बहुत टर्मोइल का एज है, बहुत स्ट्रेसफुल एज है। तो उसका जो परसेप्शन है वो, उसको किस तरीके से आप नेगेटिव से पॉजिटिव ले आए कि उसका डिक्लाइन ना हो, उसे किसी तरह की क्षति ना हो, इसका भी ध्यान माता को रखना चाहिए। क्योंकि अगर आइडेंटिटी डेवलप होगी, अगर ईगो इंटेग्रिटी डेवलप होगी, अहम संगठन विकसित होगा, तो उसमें फिडेलिटी, लॉयलिटी या वफादारी विकसित होगी, और वो आगे जाके हर एक रिश्ते को बहुत ही लॉयलिटी या फिडेलिटी के साथ निभाना जानेगी। तो हम हमेशा ये कोशिश करें कि जो बालिका है उसमें हम ईगो इंटेग्रिटी, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मेरी सीमाएं क्या हैं, मेरे में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, इसको हम जानने में उसकी सहायता करें। अब जो सेल्फ एस्टीम है जो एडोलेसेंट एज में होता है, तो बहुत फिजिकल चेंजेस के साथ बहुत हैम्पर होता है। इस अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कि जो एक एडोलेसेंट लड़की है जब बाहर निकलती है तो बड़ी चैतन्य हो जाती है, बड़ी कॉन्शियस हो जाती है, उसे लगता है कि सब लोग शायद उसे ही देख रहे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको भी माता ने सॉल्व करना है, कि इससे उसे प्रेशर फील नहीं करना है, उसे दबाव फील नहीं करना है। फैमिली और सोसाइटी की ये भूमिका होना चाहिए, कम्युनिटी की ये भूमिका होना चाहिए कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें। 2 बार एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन होते हैं, एक तो जब वो एडोलेसेंट एज की होती है और जब वो मेनोपॉजल एज में आती है, वहां भी उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और एडोलेसेंट एज में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये जो रूपांतरण है ये दोनों ही आयुओं में कंसर्न मांगता है, एड्रेस मांगता है, और इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब ये देखा गया है कि इस दौरान बहुत सारी बच्चियां दुबला होने का प्रयास करती हैं,
उन्हें ये लगने लगता है कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, जिसे इन दिनों जीरो फिगर भी कहा जा रहा है। हमारे देश में 10,000 लड़कियों में 1 लाख लड़कियों में 37.2 लड़कियां ऐसी हैं जो कि एनोरेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित। ये एनोरेक्सिया या दुबले होने का जो डिसऑर्डर है, एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है, जो कि लड़कियों में बहुत कॉमन है। तो माँ ये कंसर्न रखे, ये ध्यान रखे कि कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा है कि मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरा शरीर पर्याप्त नहीं है, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तो ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस उससे हो रही है, उसको ओवरकम करने में माँ मदद करे। क्योंकि एक बार अगर उसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, खान पान की विकृति हो गई, एनोरेक्सिया हो गया या बुलिमिया हो गया, जिसमें वो बिंज ईटिंग करने लगी, बहुत 10 समोसे एक साथ खा ले रही है, इतना बड़ा सैंडविच एक साथ खा ले रही है, तो दोनों भी जो डिसऑर्डर है वो इसलिए हुए कि उसे आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई। आइडेंटिटी क्राइसिस उसे इसलिए हो गई है क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम लो हो गया है। सेल्फ एस्टीम इसलिए लो हो गया है कि माँ ने उसे सिखाया नहीं है कि उसको अपनी लिमिटेशन कहाँ तक रखनी है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, ये अल्टीमेटली आपने उसे सिखाना है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि वो प्रॉपर रोल डेवलप करे। जब हम सॉरी मैम टू इंटरप्ट, मैम कैन यू प्लीज कंक्लूड? हाँ, स्पीकर इज वेटिंग मैम, अच्छा, he has to go in another meeting. तो मैं इसको आगे बढ़ जाती हूँ। बस 2-3 स्लाइड्स और हैं गीता जी। हाँ तो जी। जो बॉडी स्टीम है, ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को माता को डील करना आना चाहिए। और जब मैं एक लड़की से एक स्त्री बनूं तो मुझ में सारी क्षमताओं के साथ साथ कंपेशन भी होना चाहिए। मुझे वल्नरेबल नहीं होना चाहिए, वीक नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। और जब विवाह हो जाए, एक लड़की का विवाह हो जाए, तो हम कहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी फ्यूज हो जाती है। वो फला फला मिसेस शर्मा से अग्रवाल हो गई या अग्रवाल से मिसेस शर्मा हो गई। तो ये जो फ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी है, इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंटीमेसी जिसे कहते हैं, इंटीमेसी और आइसोलेशन दो एस्पेक्ट हैं कि अडल्टहुड में आप विवाह करके स्थापित हो गए या अकेले रहना पसंद करते हैं, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। तो जो लोग अकेले रहते हैं या जो इंटीमेट रिलेशनशिप में सानिध्य पूर्वक संबंधों में नहीं जाना चाहते हैं, ऐसी जो स्त्रियां होती हैं, ऐसी जो महिलाएं होती हैं, उनमें आगे जाकर डिप्रेशन जैसी बातें या अकेलापन जैसी बातें हो सकती हैं और आइसोलेशन की फीलिंग डेवलप हो सकती है। और जब भी आइसोलेशन की फीलिंग डेवलप होती है, लव की फीलिंग डेवलप नहीं होती। क्योंकि समय हमारे पास कम है। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो माता अपनी बिटिया को सिखा सकती है, फॉरगेट, फॉरगिव एंड इग्नोर। ये ऐसे गोल्डन वर्ड्स हैं जिसको हमें याद रखना है, क्योंकि हम गिविंग एंड पर हैं और हमें बहुत सारी लोगों को सिखाना है। क्योंकि हम एक एजुकेटर हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि छोटी छोटी गलतियों को माफ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे एज में जब हम 50s में होते हैं, तो हमारी जो अवस्था होती है वो ऐसी होती है जिसमें जेनरेटिविटी होती है। अब हमें नदी की तरह व्यवहार करना होता है और हमें ये देखना होता है कि जो मैंने अपनी माँ से प्राप्त किया है वो अपनी डॉटर को मुझे देना है, और इसे हम केयर या देखभाल कहते हैं। अंत में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। इसे आप सुन लेंगे प्लीज। नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ प्राचार्य सर के प्रति और संपूर्ण टीम के प्रति कि मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर दिया। सादर अभिवादन और नमस्कार। थैंक यू गीता जी, थैंक यू गुप्ता सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उषा किरण अग्रवाल मैम।
आपने बहुत ही प्रभावशाली एवं सारगार्भित अपने विचारों को अत्यंत सरल शैली में और मनोवैज्ञानिक ढंग से इतने सुंदर तरीके से माँ और शिशु के संबंधों को दर्शाया, जिससे आपकी सदाशयता एवं आपकी विनम्रता प्रतिबिंबित होती है। तो आपने ये बताया कि किस तरह से नारी घर से ही, यानी कि गर्भस्थ शिशु ही अगर सुरक्षित है तो आगे जाके उसकी सुरक्षा के लिए फिर समाज में क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इन सभी चीजों के लिए, या जो कहिए आज हम ये जो टॉपिक लेकर आए हैं कि नारी अधिकारों की सुरक्षा, तो आपने नारी के जो बेसिक सुरक्षा के अधिकार हैं उनके बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार सभी का अग्रवाल महाविद्यालय के प्राचार्य परम श्रद्धेय परमादरणीय डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी, हमारे आज के मान और सम्मान के योग्य वक्ता दोनों का, डॉक्टर गीता गुप्ता, डॉक्टर शोभना गोयल जो वुमेन सेल की ऑर्गेनाइज संयोजिका हैं, मैं डॉक्टर रेणु माहेश्वरी, विभिन्न विभिन्न राज्यों से देश के आए हुए इस वेबिनार में भाग लेने वाले शिक्षक वृंद और विद्यार्थियों का एक बार पुनः अभिवादन करते हुए आज के कार्यक्रम की जो हमारी दूसरी बहुत ही होनहार युवा जो हमारी वक्ता है एडवोकेट नेहा कोशी जी, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ और उनका थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी, जो मेरा दायित्व है, क्योंकि वैसे वो इतनी होनहार हैं, इतनी कम उम्र में उनका परिचय देना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। क्योंकि जैसा मैंने उनके बारे में पढ़ा, एक्चुअली मैं उनसे अमेज़न पर उनकी पुस्तक थी अंडरस्टैंडिंग वर्क प्लेस लॉज फॉर वीमेन इन इंडिया, इसके माध्यम से उनके संपर्क में आई और मैंने उनको कांटेक्ट किया। इसकी नेहा जी और ईशा जी लेखिका के रूप में मेरे सामने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने उस पुस्तक में 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन ऑफ वर्क प्लेस, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा उन्होंने नारी के जो अधिकार हैं उनके ऊपर अपनी लेखनी चलाई है इस पुस्तक में, वो बहुत ही सराहनीय है। नेहा जी, आपको पाकर और डॉक्टर उषा किरण अग्रवाल मैम को पाकर, ऐसे वक्ता पाकर हम धन्य हो गए हैं। तो मैं अभी आपके पास समय कम है, आपके बारे में कुछ जो एक दो बातें जो मैंने पढ़ी हैं कि आप लाडी जो फाउंडेशन है उस की फाउंडर रही हैं और आपने अपनी जो इन हाउस, आप लॉयर हैं गुड़गांव में, और आपने अपनी जो शिक्षा है वो वेस्ट बंगाल से की है LLB की, और आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी वेबिनार सेमिनार, बहुत सारी कोर्सेज में दिन प्रतिदिन भाग लेती हैं। आज भी हमने उनके व्यस्ततम क्षणों में से कुछ क्षण लिए हैं और हमें खेद है आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, और मैं अब बिन देरी किए आपको आमंत्रित करती हूँ। अभी हमने नारी की शिशु रूप में सुरक्षा के बारे में सुना, अधिकारों के बारे में। अब नारी क्योंकि अब कामकाजी हो गई है, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो उसके जो कार्य क्षेत्र में जो सुरक्षा है, उसके अधिकार हैं, उन पर प्रकाश डालेंगी नेहा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल कृष्णकांत जी और रेणु माहेश्वरी जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में बात करने का अवसर मिल गया, तो आपको मेरा धन्यवाद। मैं बिना आपके ज़्यादा वक्त लिए मैं अपने प्रेजेंटेशन पे ही जाती हूँ। मैंने पिछले साल एक किताब लिखा था अंडरस्टैंडिंग वर्क प्लेस लॉज फॉर विमेन इन इंडिया, तो इसमें हमने सारे कानून कवर किए थे। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, मैटरनिटी लॉ, इक्वल वेजेस और जो फैक्ट्रीज में है जो कानून है औरतों के लिए, उसको भी कवर किया था हमने। तो मैं अभी शेयर करूंगी। हाँ,
मेरा प्रेजेंटेशन मेनली 2 चीज़ों पे कवर होगा, जो यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून है उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री, और बेसिकली मैं एक आपको समझाऊंगी कि कैसे कार्य क्षेत्रों में क्या कानून निभाना चाहिए एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को, यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो कानून है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो मैं बेसिकली इस सेशन में डिस्कस करूंगी। ये भारत में तो यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून 2013 में हुआ था, पर इसका इतिहास थोड़ा पीछे जाता है। पहला केस जो जिसमें गाइडलाइंस इशू हुई थी वो थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे बनवारी देवी जी नाम की एक औरत ने कंप्लेन किया था कि उसका रेप अपने वर्क प्लेस में हुआ था, और उसके उस सैड सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी, जिसके अनुसार हर एक वर्क प्लेस में एक आंतरिक शिकायत समिति यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सेटअप होनी चाहिए। ये केस के जो गाइडलाइंस है वो अल्टीमेटली 2013 में एक लॉ की तरफ पास हो गया। वो था द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस 2013 एक्ट, दैट इज द यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013। ये जो एक्ट है उसने क्या किया, उसने जो भी डेफिनेशंस है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस, what is a workplace, who is an employee, who is an employer, ये सब क्लियरली उसने डिफाइन किया था। यही वो एक्ट का लैंडमार्क फीचर है। फिर एक्ट ने एक और चीज की थी कि उसने गवर्नमेंट रेड्रेसल बॉडीज यानी सरकारी बॉडीज सेटअप की थी जो ये कंप्लेंट्स भी देख सके। एक ये एक्ट के जाने से पहले मैं एक 2018 में मीटू मूवमेंट के बारे में बताना चाहती हूँ। 2018 में अगर आपको याद है तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीटू मूवमेंट हुआ था। ये मीटू मूवमेंट एलिसा मिलानो के ट्वीट से शुरू हुआ था, जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि अगर आप कभी सेक्सुअली या आपके खिलाफ कोई यौन उत्पीड़न या यौन हमला हुआ है तो आप इस ट्वीट के रिस्पॉन्स में मी टू लिखिए। और फिर उन्होंने देखा कि उनके ट्वीट के रिस्पॉन्स में ओवर 1 मिलियन ट्वीट्स आए थे मी टू बोल के, तो वो एक बड़ा मूवमेंट हो गया। और फिर ऑर्गेनाइजेशंस, कार्य क्षेत्र और एम्प्लॉयर्स ने बहुत नोटिस किया कि यौन उत्पीड़न के खिलाफ लॉज एनफोर्स होने चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होने चाहिए। इसीलिए ज्यादा फोकस उस पर आ गया और लोगों ने उसको सीरियसली लेना शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे पॉश एक्ट 2013, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 कौन कौन से वर्क प्लेसेस को कवर करता है। अगर आपका कार्य क्षेत्र मीनिंग योर वर्क प्लेस एम्प्लॉयज मोर देन 10 पीपल, देन इट इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एन ICC। अगर आप कार्य क्षेत्र में 10 लोगों से ज्यादा हैं, 10 लोग नॉट 10 महिला, 10 लोगों से ज्यादा लोग काम करते हैं तो आपको एक आंतरिक शिकायत समिति सेटअप करनी होगी। ये लॉ के अंडर मैंडेटरी है। पॉश एक्ट 2013 के अंदर सारे वर्कर्स कवर्ड हैं, वेदर वो फुल टाइम वर्कर्स हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, वो इंटर्न्स हैं, उनको सभी वर्कर्स को कवर किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई औरत आपके वर्क प्लेस में, आपके कार्य क्षेत्र में विजिटर है, या वो कस्टमर है, या वो क्लाइंट है, या कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस को, वो भी कवर हो जाती हैं, वो भी कंप्लेंट्स रेज कर सकती हैं पॉश एक्ट के अंडर। ये जो वर्क प्लेस है, ये वर्क प्लेस का डेफिनेशन बहुत ही बड़ा है। ये कवर करता है प्राइमरी वर्क प्लेस, मतलब आपके ऑफिस का प्राथमिक कार्य क्षेत्र, आपका ऑफिस का बिल्डिंग, उसके जो अराउंड है वो सब कवर होता है। फिर वो कवर करता है वस्तित्र कार्य क्षेत्र, मतलब एक्सटेंडेड वर्क प्लेस। सपोज आप अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, या आप काम के सिलसिले में आपका कोई रिट्रीट हो या मीटिंग हो, वो भी
जहां भी आप जा रहे हो काम के लिए, अपने ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, वो भी वर्क प्लेस माना जाता है। सपोज आपके ऑफिस का कोई एनुअल फंक्शन है, एनुअल डे फंक्शन, और वो ऑफिस के बाहर है, उसको भी एक्सटेंडेड वर्क प्लेस में कवर किया जाता है। फिर इसके बाद जो इंक्लूड होता है वर्क प्लेस के डेफिनेशन में, वो है वर्चुअल वर्क प्लेस, यानी आभासी कार्यस्थल। आज के टाइम पे हम अपना काम सब ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रहे हैं, वो सब वर्क प्लेसेस भी इस एक्ट के अंदर कवर होते हैं। तो अब हम जाते हैं व्हाट इज डिफाइंड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है unwelcome sexually tinted behavior, whether directly or by implication, such as physical contact, यानी जिस्मानी संबंध, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यानी जिस्मानी ताल्लुक की मांग, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, यानी दोहरी अर्थ वाली भाषा, फिजिकल वर्बल एंड नॉन वर्बल रिमार्क्स, यानी शारीरिक गैर मौखिक और मौखिक व्यवहार, ये सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। Physical contact, demand for and request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct of sexual nature. ये इसके अलावा और भी circumstances को भी sexual harassment माना जाता है। एक, जब कोई प्रॉमिस दिया जाता है कि आपको कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा, या थ्रेट दिया जाता है कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते तो आपको खराब व्यवहार होगा आपके खिलाफ वर्क प्लेस पे, या आपके काम पे इंटरफेरेंस विद वर्क, और क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, इन सब को कवर किया जाता है डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। इसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत ही वाइड डेफिनेशन द लॉ पॉश एक्ट में एस्टैब्लिश किया है। इस सब में आपको क्या नोटिस करना है कि परसेप्शन ऑफ द वुमन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर किसी औरत को लगता है कि वो जो उनके खिलाफ हो रहा है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो ज्यादा मैटर करता है रादर देन जिसने उनके खिलाफ कुछ किया है उनके इंटेंट का। परसेप्शन ऑफ द इवेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंटेंट। ये पॉश एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है और ये बार बार कोर्ट्स ने दोहराया है। तो अब हम जान चुके हैं क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब हम जाते हैं कि ये कंप्लेंट्स, सेक्सुअल हैरेसमेंट के कंप्लेंट्स कैसे एड्रेस होने चाहिए। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने बोला था, अगर 10 लोगों से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं तो एक आंतरिक शिकायत समिति होनी चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति में मिनिमम ऑफ 3 मेंबर्स होने चाहिए, जहां पे 2 लोग सीनियर मेंबर्स हो जो HR पॉलिसीज को समझे, और एक तीसरा मेंबर हो, प्रेफरेबली वुमन, जो एक NGO से एसोसिएटेड हो। ये तीसरे मेंबर से हम न्यूट्रलिटी लाना चाहते हैं। 3 मेंबर्स मिनिमम होने चाहिए ICC में। ICC के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? 1, क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। हर एक ICC को एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रखना चाहिए कि हम किसे सेक्सुअल हैरेसमेंट मानते हैं, हम किस टाइप के एम्प्लॉयज को कवर करते हैं, हम क्या एक्शन लेंगे अपने किसी इंस्टेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के। ये पॉलिसी सारे एम्प्लॉयज को पता भी होनी चाहिए, सबको जानना चाहिए कि उनके ICC की पॉलिसीज क्या है। सेंसिटाइजेशन के लिए सेंसिटाइजेशन यानी अपने एम्प्लॉयज को बताना कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज है। ये हम ईमेल से कर सकते हैं, सेमिनार से कर सकते हैं, अपने ऑफिस में पोस्टर्स लगा के कर सकते हैं। तो ये पॉलिसी होना और पॉलिसी के बारे में सेंसिटाइज करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉश एक्ट के अंदर। फिर मैंडेटरी एक्सटर्नल मेंबर्स, जैसे मैंने बोला था, ये पॉश एक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि एक्सटर्नल मेंबर्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनली हर एक ICC को एनुअल रिपोर्ट भी पब्लिश करना पड़ता है।
ये एनुअल रिपोर्ट होता है कि कैसे एक कार्य क्षेत्र ने ये लॉ का कंप्लायंस किया है। अब मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से पॉश एक्ट के बारे में बताया है। मैं अपने बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये मैंने जो बुक लिखा है जो अमेज़न में अवेलेबल है, ये बुक एक गाइड बुक है। इसमें पॉश एक्ट, द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 एक्ट, मैटर्निटी पे जो लॉज हैं, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के अंदर, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस जो फैक्ट्रीज में एप्लीकेबल है वुमेन के लिए उसके अंदर, और डिटेल एनालिसिस जो भी केस लॉ है औरतों के लिए उनके काम के सिलसिले में, वो सब हमने कवर किया है। हमने चेकलिस्ट भी डाला है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वो कैसे लॉ के साथ कंप्लाई कर सकते हैं। ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर यहाँ पे किसी को मेरे से कोई क्वेश्चंस पूछना हो, सवाल पूछना हो और वो यहाँ पे रेज नहीं करना चाहते, आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। I think that's about it. इतना ही, मेरा सेशन बहुत शॉर्ट था। If anyone has any questions, you can please raise it. आप chat box में लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगी। Yeah, thank you, Ms. Neha, for this wonderful session. Ms. Neha, it was really wonderful knowing the intricacies of this POSH Act. In fact, I have a question. Can I ask you a question? Yes. Hello, am I audible? Hello? Yeah, you are audible. Okay. Ma'am, there are two acts, that is POCSO and POSH. POCSO is related with children. So my question is, if a child is harassed sexually at school or college, it's on campus, then under which act the case would fall into? POCSO. It'll fall under POCSO. POCSO. And POSH is applicable on both employees as well as the students studying in the college or schools. Yes, but the penalties under POCSO are more stringent, and POCSO is a criminal act. तो आप पुलिस पे कंप्लेन कर सकते हो। पॉश एक्ट के अंदर आप पुलिस पे कंप्लेन कर तो सकते हो, बट आपको पहले एडवाइजेबल होगा कि आप अपने इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में जाइए और उसका रेड्रेसल कीजिए। पॉक्सो में आप तो आपका फर्स्ट इंस्टेंस होना चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट ले और फिर पुलिस जाइए। तो पॉक्सो इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, पॉश एक्ट इज अ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस. Okay, because these days many incidents are taking place in campuses as well, in schools and colleges. So that's why my question was this. Any more questions from the audiences? इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स अगर वो 18 इयर्स के अबाव है तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में कंप्लेन कर सकती हैं। वो उनका भी कंप्लेन माना जाता है और इस आईसीसी में। Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. And in fact, you have touched upon a very sensitive matter which has been long since undermined by various organizations. And I hope all our participants would have been greatly benefited by today's discussion. And so today's webinar has reached to the final wrap-up. And I, Dr. Shobhana, I'm here to extend a formal vote of thanks. So I extend my gratitude on behalf of Women's Cell Agarwal College, Ballabgarh, to the worthy management and the principal, Dr. Krishan Kant Gupta ji, who is a source of inspiration behind planning all these events. Sir, we thank you for all the support that you extended to organize today's webinar to create awareness and sensitizing the youth and society as a whole. We are really grateful to our both the speakers, Dr. Usha Kiranji and Ms. Neha, for accepting our invitation and enhancing our knowledge about various social and legal issues pertaining to women. I would also like to thank Dr. Geeta Gupta and Dr. Renu Maheshwari for coordinating the event very well. A sincere thanks to all the participants, including my fellow colleagues from my own college and from the various colleges across nation and their students. Last but not the least, I would like to thank Mr. Vineet Nagpal, without whose support this online event could not have been completed successfully. Thank you once again, one and all. Have a good day ahead.
Thank you. Shobna, can we have group photo? Yeah, we and one more thing, one more announcement for the participants. The feedback link will be shared in the chat box, and that will remain open only for 10 minutes. And the certificates will be provided on the basis of feedback link. Vineet, can we please share? Yeah. Yes, It's ma'am. in the Link chat. is shared. Yeah. Link Thank you. is shared, ma'am. Thank you, Vineet. It's Thank you. there. So all the participants are requested to please switch on the camera for a group photograph. I request our principal sir as well. Yeah, those who are comfortable in switching on the camera. मैं कैमरा फोटो हो रहा है, कुछ बोल दूं हाँ हाँ अपने जो वक्ता है उनको, हाँ जी। नेहा जी और डॉक्टर उषा किरत जी, मैं कहना चाहूंगी कि अच्छे लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है और छोड़ना और भी मुश्किल होता है, लेकिन भूल जाना नामुमकिन होता है। तो हम समय समय पर आपकी सेवाएं लेंगे और अपने कॉलेज में आपसे जैसी परिस्थितियां होंगी वेबिनार या सेमिनार रूबरू होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। The participants who have filled the form may leave the meeting, please.